Hello students, we are going to start with the second chapter of biology, that is structure of chromosomes, cell cycle and cell division. In this chapter, as it is written in the chapter, we are going to cover the structure of chromosomes, that is a basic structure, what are chromosomes composed of and what are the various components. Then cell cycle includes interphase and mitotic phase, that is G1S, G2 phase and mitotic phase, and cell division. There are two types of cell division in cells and we are going to study one of them in detail, that is mitosis. We are going to study in detail, and meiosis only we'll have a brief understanding of significance of meiosis. We are not going into detail because that we study in class 11th. So only the basics. So now we should start with the chapter. Now when we start with the chapter, it is basically related to cell division. So you should know why is cell going to divide, why is cell division important. It is the जब आपने लिविंग और नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है that living beings they have the capability to divide, that is they have their cells divide. So cell division is the one of the most fundamental characteristics of life. If somebody is living, if something is alive, that means it is growing and its cells are in a continuous state of division. So this means that cell division की वजह से ही लाइफ जो है वो आगे बढ़ती है, कंटिन्यूटी मेंटेन होती है, हमारे ऑर्गन्स ग्रो करते हैं, या हमारे ऑर्गन्स में अगर कोई इशू होता है, कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है तो वो रिपेयर हो जाते हैं. सो सेल डिवीजन, रिपेयर, रीजनरेशन और ग्रोथ तीनों के लिए बहुत इसेंशियल है. सो दिस इज द मेथड विच इनेबल्स लाइफ टू परपेचुएट जनरेशन आफ्टर जनरेशन. लाइफ चलती रहती है, रिप्रोडक्शन होता है और लाइफ एक के बाद एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ऐसे इट गोज ऑन. एंड दिस सेल डिविजन, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ गोज ऑन, that is reproduction and cell division, is equally true in the case of simplest organisms like amoeba. Amoeba is a very simple organism, unicellular organism. Or if we take an example of a very complex organism or very huge organism like elephant or whale or very very tall palm trees or coconut trees, in every single organism which has got life, the cell division goes on, because it is the only process through which life is carried on. Life perpetuates through cell division. The most conspicuous events occurring during cell division are all related to chromosomes. ये क्या कह रहे हैं कि जो भी cell division में जो events होते हैं, जो steps हैं उसके, वो सारे किससे related है? Chromosomes. और chromosomes कहाँ होते हैं? Nucleus के अंदर. So nucleus is a very very important part for this process. The duplicated chromosomes get evenly distributed into the daughter cells during mitosis. Mitosis जो होती है, division ऐसी होती है कि उसमें chromosome number same रहता है. जब सेल डिवाइड होते हैं तो जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर होता है उतना ही जो सेल फॉर्म होता है, जो डॉटर सेल फॉर्म होती है उसमें होता है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल, अभी चैप्टर में पढ़ेंगे. सो ऑल द बॉडी सेल्स आर रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स एंड दे हैव द सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इन द सेम नंबर. क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता माइटोसिस में और क्रोमोसोम की टाइप चेंज नहीं होती है, सेम होते हैं. This ensures the normal functioning of the cells and through that the life of an organism. जब क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, सब कुछ सेम होता है तो लाइफ नॉर्मल चलती रहती है. अगर इसमें कुछ वेरिएशन आ जाती है देन वी कॉल इट एबनॉर्मेलिटी, जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं. नाउ व्हाट आर क्रोमोसोम्स? होते क्या हैं? दे आर द कैरियर विच ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. सो when they have explained it, when a normal unstained living cell is observed under a light microscope, its nucleus may not appear to contain anything particular inside. ये कह रहे हैं कि जब आप एक लिविंग सेल को स्टेन करते हो, नॉर्मली स्टेन करते हो अपनी लैब में, जैसे आप स्टेनिंग करते हैं, आपने 9th क्लास में की होगी स्टेनिंग प्रैक्टिकल्स में, तो आपको उसमें कुछ भी डिटेलिंग नज़र नहीं आएगी क्योंकि हम इसको जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है ये काफ़ी अच्छी जो हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप्स होती हैं उन्हीं से नज़र आएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली. लेकिन हम जब सेल को डाई से स्टेन करेंगे तो आपको न्यूक्लियस नज़र आ जाएगा.
और कुछ और छोटे मोटे स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, डिटेलिंग नज़र नहीं आएगी। नॉर्मल जो हम डाइज यूज़ करते हैं लैब में, वो आपने मिथिलीन ब्लू यूज़ किया होगा या मिथाइल ऑरेंज यूज़ किया होगा, लेकिन जब हम न्यूक्लियस को स्टेन कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्माइन या बेसिक फ्यूशन। ये बेसिक डाइज हैं, इनको यूज़ कर सकते हो आप, या जो भी अवेलेबल हो। So the nucleus contains most of the cell's DNA which is organized into discrete unit called chromosomes। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सेल में जितना भी डीएनए होता है उसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और बाकी कहाँ होता है, एनिमल सेल में। और कौन सा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लांट सेल में also कौन सा ऑर्गेनेल होता है जिसमें डीएनए होता है, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही है। तो एक तो वो हो गया, दूसरा क्या होते हैं जिसमें कि प्रेजेंट होता है डीएनए, क्लोरोप्लास्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट सेल में 3 ऑर्गेनेल हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा न्यूक्लियस। एनिमल सेल में न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो अब क्रोमोसोम में होता क्या है, ईच क्रोमोसोम कंटेन्स 1 लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद मेनी प्रोटीन्स। मतलब एक जो क्रोमोसोम है वो डीएनए की बहुत लंबा मॉलिक्यूल है, उसकी चेन है, और उसके साथ कुछ प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं, एंड टुगेदर दे फॉर्म अ क्रोमोसोम। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है डीएनए और प्रोटीन्स का, इसको मिला के हम बोलते हैं दिस इज नोन एज क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमैटिन नेटवर्क। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जब सेल अपने रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं हम, वैसे इंटरफेस बोलते हैं आजकल उसको, जब वेन एवर सेल इज नॉट डिवाइडिंग, तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ वेरी वेरी लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली थिन डार्क स्टेन्ड फाइबर्स। मतलब कि क्रोमैटिन नेटवर्क भी बोलते हैं हम इसको, क्रोमैटिन मटेरियल भी बोलते हैं। तो ये एक जैसे एंटैंगल्ड थ्रेड्स होते हैं, धागे के गुच्छे होते हैं, उस फॉर्म में ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। जैसे ही सेल डिवाइड होना शुरू होता है तो क्रोमैटिन मटेरियल जो है इट कम्स टुगेदर, थोड़ा सा थिक हो जाता है, इट ऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स। दे रखा है आपकी बुक में। हाउएवर एज अ सेल प्रिपेयर्स टू डिवाइड, द क्रोमैटिन फाइबर्स कॉइल एंड कंडेंस फर्दर। कॉइलिंग होती है और कंडेंसेशन होती है, मतलब बहुत इकट्ठे हो जाते हैं सारे, वो एक शेप लेते हैं, एंड दे इवेंचुअली बिकम थिक एनफ टू बी डिस्टिंग्विश्ड एज अ सेपरेट क्रोमोसोम्स। सेपरेट स्ट्रक्चर बन जाते हैं, सेपरेट क्रोमोसोम बन जाते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये बहुत जल्दी, जो आप डाइज यूज कर रहे हो ना, इनको पिक करते हैं। तो ये इजीली डाइज को पिक करते हैं, मतलब बहुत जल्दी स्टेन हो जाते हैं। दे पिक अप डाइज एंड गेट कलर्ड एंड हेंस द नेम क्रोमोसोम्स। तो इनका नाम क्रोमोसोम क्यों है, क्योंकि क्रोमा का मतलब कलर्ड और सोमा का मतलब बॉडी, तो क्रोमोसोम बहुत जल्दी कलर हो जाते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या हैं, दे आर हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फाइबर्स। क्रोमैटिन के फाइबर जो हैं हाईली कंडेंस्ड है और कॉइल्ड है, इनको हम बोल रहे हैं क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे, सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट थे वॉल्टर फ्लेमिंग। 1882 में उन्होंने सैलमेंडर एक एम्फीबियन होता है, उसके लार्वे की स्टडी की थी और उसमें ये सबसे पहले डिस्कवर किए थे। तो उनकी माइक्रोस्कोप थोड़ी सी प्रिमिटिव थी, उस समय उतनी अच्छी माइक्रोस्कोप होती भी नहीं थी, तो उन्होंने फिर भी ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको उसको नाम दे दिया क्रोमोसोम्स। और तब से लेके आज तक हमारी साइंस बहुत डेवलप हो गई। नाउ वी नो द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये आपको ये फिगर 2.1 में डायग्राम दे रखा है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोटिक फेज। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे फर्दर। ये देखो क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं, आप इनका स्ट्रक्चर, ये ऑलरेडी कलर्ड है डायग्राम में, इसमें कुछ आपको कर नहीं रही हूँ, नहीं तो आप और ज़्यादा हो जाए। ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये सारे क्या है, थ्रेड जैसे दिख रहे हैं आपको। ये जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, इंटरफेस में है। उसके बाद देखो जब सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रहा है, इट इज गेटिंग रेडी फॉर डिवाइडिंग, इट इज रेडी टू गो इनटू डिवीजन, देन दीज थ्रेड्स हैव कंडेंस्ड। पहले वाले जो धागे थे वो देखो पतले थे, ये थोड़े कंडेंस हो गए, एंड अल्टीमेटली एज सून एज द सेल इज गोइंग इनटू डिवीजन, दीज हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू दीज थिक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमैटिन फाइबर थे फर्स्ट स्टेज में, जो फर्स्ट स्टेज में उसमें फाइबर हैं, सेकेंड में ये फाइबर थोड़े थिक हो गए, और थर्ड में आप देखो ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये क्रोमोसोम्स में होता क्या क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट।
अब जो क्रोमैटिन मटेरियल है जो हमने थ्रेड लाइक देखा था, उसके दो पार्ट होते हैं, दो चीज़ों से मिलके बनता है। पहला हो गया डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि 40% कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका। Then second is histones. They are a particular type of protein and they constitute about 60% of the chromatin fibers or the chromosomes. Now, the shape of DNA molecule was first studied by Rosalind Franklin in 53. सबसे पहले स्टडी जो की वो रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने की। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आए कि हु वर्कड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, देन यू विल हैव टू राइट वॉटसन एंड क्रिक, क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। और सेम ईयर में 1953 में वॉटसन एंड क्रिक डेवलप दैट डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए उन्होंने वर्कआउट किया था, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1962 में। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। अब डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है, इट इज़ अ वेरी वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, इसलिए इसको मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होती हैं जो कि एक दूसरे के ऐसे लिपटी होती है। ये डायग्राम है, मैं अभी यहाँ को आपको बना के दिखा दूंगी। ईच सिंगल डीएनए स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनके रेपिटेशन से डीएनए बनता है। और न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरी एक पेंटोज शुगर, और तीसरा एक नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों से मिलके ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड है, ठीक है। अब हम इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया कि एक स्ट्रैंड यहाँ से आई, ये एक जैसे रिबन जैसा, और दूसरी स्ट्रैंड यहाँ से आई, तो ये दो रिबन एंटवाइन कर रही हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये यहाँ से कर्व्ड है, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो हम जैसे इन्होंने एक सिंगल लिया है, यहाँ पे देखो दोनों स्ट्रैंड्स को आई विल टेक अ डिफरेंट कलर ताकि आपको नजर आए। तो ये हमारी दो स्ट्रैंड्स बना लेते हैं हम। एक स्ट्रैंड आपकी ये हो गई और दूसरी स्ट्रैंड हो गई ये दो स्ट्रैंड बन गई। अब इन स्ट्रैंड्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं किससे मिलके बनती हैं। तो ये जो स्ट्रैंड होती हैं, दे हैव गॉट, आई विल टेक ग्रीन कलर, ओके, दे हैव गॉट, हमने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनती है डीएनए की स्ट्रैंड। तो न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट क्या होते हैं। फर्स्ट हो गया फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप को जैसे आपकी बुक में भी डायग्राम में ये कलर्ड शो किया है, दिस इज दी फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद है शुगर। शुगर कैसी है, पेंटोज है। पेंटोज है तो हम एक पेंटागन बना रहे हैं, ये आपकी पेंटोज शुगर हो गई। ये हो गई आपकी पेंटोज शुगर। एंड दे आर अटैच टू अ नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो बेस है, ये आपके, पहले मैं यहाँ भी बना देती हूँ, ये हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप, ये पेंटोज शुगर हो गई, और यहाँ से एक और बेस आ रहा है। अभी जो बेस होते हैं डीएनए के अंदर, ये दो तरह के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो हम पढ़ रहे हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्यूराइन और एक होते हैं पिरिमिडीन। तो प्यूराइन जो होते हैं, फिर वो फर्दर दो तरह के होते हैं, एडेनाइन और ग्वेनाइन। और पिरिमिडीन जो होते हैं वो होते हैं थाइमिन और साइटोसिन। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ये जो बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है, इसके बीच में जैसे लैडर होती है ना, सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो लैडर के जो रंग्स होते हैं, बीच में जो उसके स्टेप्स होते हैं, उनको हम RUNGS रंग्स बोलते हैं। तो ये स्ट्रैंड जो है मिलके एक लैडर जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। दे रखे ना, दो टू स्ट्रैंड्स टुगेदर मेक अ लैडर लाइक अरेंजमेंट विद द नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्मिंग द रंग्स ऑफ द लैडर। तो जो सीढ़ी का जो ये जो है, जैसे सीढ़ी ऐसी होती है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये रंग्स बोलते हैं हम इनको। और ये किससे मिलके बनते हैं, नाइट्रोजनस बेस से। तो दो प्यूराइन है और दो पिरिमिडाइन है। तो ये क्या होते हैं कि एडेनाइन, वन एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विद वन पिरिमिडीन। तो एडेनाइन जो है वो थाइमिन के साथ पेयर करता है और ग्वेनाइन साइटोसिन के साथ। तो हम इसका कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है ATGC। और एक और चीज़ है तो कि जो A और T होंगे उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। और नेक्स्ट जो बॉन्ड आएगा, जैसे ये सेम ग्रुप यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट ग्रुप एक, और नेक्स्ट जो बॉन्ड बनेगा उनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अब यहाँ पे जैसे G और C आएगा तो GC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि A और T जो हैं,
ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं. दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी फर्दर. दीज आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो प्यूराइंस पिरामिडीन्स के साथ कंबाइन होते हैं बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. पहला वाला एडेनाइन थाइमिन के साथ होता है तो ए टी, ये हो गया ए टी बन रहा है जो, और ए टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड. और दूसरा जो ग्वेनाइन है वो साइटोसिन के साथ कंबाइन करता है और जी और सी ये हो गया, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो ये एक डीएनए की स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर होता है. ये एक पूरा एक न्यूक्लियोटाइड होता है. तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको दे रखा है कि 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस आर फाउंड इन डीएनए. दीज आर एडेनाइन, ग्वेनाइन, साइटोसिन एंड थाइमिन. एडेनाइन पेयर्स विद थाइमिन्स विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको. एंड ग्वेनाइन पेयर्स विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो ये एक डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है, डबल हेलिकल मॉडल, जिसके लिए कि वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज मिला था 1962 में. दे हैड डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर इन 53 एंड दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1962. अब सेकेंड पार्ट जो है डीएनए मॉलिक्यूल का वो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स. अब ये प्रोटीन्स क्या है, जो कि डीएनए की जो स्ट्रैंड है उसकी पैकेजिंग करने में हेल्प करते हैं, उसको कॉम्पैक्ट बनाते हैं ताकि वो सेल के अंदर आ जाए. सो दीज आर द प्रोटीन्स दैट हेल्प इन द कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स. अब ये जो पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करके, ताकि क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल बहुत बहुत बड़ा होता है, इट इज अ ह्यूज मैक्रो मॉलिक्यूल, बट इट शुड कम विद इन दी small nuclei of every cell. So that is why they have to be compressed. So this DNA strand wounds around a core of 8 histone proteins called the histone octamer, and each such complex is called a nucleosome. मतलब DNA strand जो है वो क्या करेगी, प्रोटीन्स के ग्रुप बना लेते हैं. से 8 मॉलिक्यूल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स के मोनोमर्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं, और इसको हम इकट्ठे मिला के कह देते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर. ये दे रखा है. और एक कॉम्प्लेक्स जो है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम. इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम कंबाइन होते हैं, कंप्रेस होते हैं. ये देखो आपको ऐसे में डायग्राम में दे रखा है यहाँ पे, ये देखो, ये हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए इतने सारे, फिर ये न्यूक्लियोसोम्स हो गए, न्यूक्लियोसोम कंप्रेस हो गए, इनकी कॉइलिंग हुई, कॉइल होके फिर इनकी सुपर कॉइलिंग हुई, और फिर अल्टीमेटली दे गेट कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम्स. सो ये स्ट्रक्चर जो है ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं. दे रिमेन इन द क्रोमोसोम इन हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म. बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होता है और तब ये बहुत बड़ी जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो एक सेल के छोटे से न्यूक्लियस में आ जाता है. बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ अ ह्यूमन सेल इज ओनली अबाउट 6 μm. तो बहुत छोटा डायमीटर है, डायमीटर इसका इतना सा होता है, तो इसलिए डीएनए को बहुत ज़्यादा कंडेंस करने की ज़रूरत है in order to fit it inside the nucleus. So the entire chromatin fiber is coiled and supercoiled, and then they are, it looks like something, a telephone का diagram दे रखा है. In case you've seen these old telephones, the coiling is there, and जो coil दोबारा entangle हो जाती है, we call it supercoil. So this is how it looks like, and the DNA is highly compressed and fitted inside the nucleus of a cell. Now what is the structure of a chromosome? Each chromosome in its condensed form, as visible during the start of cell division, consists of 2 sister chromatids joined at some point along the length. ये क्या कह रहे हैं कि if we take the structure of each chromosome, what is there? It has got a circular structure which we call as centromere, and it has got certain other parts, like this is a strand, this is a supercoiled strand of DNA. This is the क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें डीएनए की सुपरकॉइलिंग है, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड. तो एक क्रोमैटिड ये हो गया और दूसरा क्रोमैटिड ये हो गया. देयर आर 2 chromatids present in each chromosomes which are joined together at the center by the centromere. This is a structure known as centromere, and these are the chromatids. Okay. And these are sister chromatids. These 2
like if we call it 1 and if we call it 2, so 1 and 2 are known as sister chromatids. Now the structure may vary, the structure of chromosome may vary in the sense that the position of centromere can change. Centromere can be present here, and these maybe the upper part of the chromatids may be small and the lower part may be long, or even it can be present at the end of the chromosome, at the one end, and all the chromatids would be present at one side of the centromere. So the chromosome may have different types of structures. Each chromosome's centromere is located at a particular site. It may vary, and the centromere also serves to attach to the spindle fiber during cell division. This you are going to study in mitosis in the chapter कि जब mitosis होता है तो ये जो सेंट्रोमियर है ये इस क्रोमोसोम को अटैच करने में हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर से, और जब स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में, एंड one sister chromatids reaches one pole and the other moves towards the second pole of the dividing cell. तो ये अभी आपको शायद अजीब लग रहा होगा, but when you study mitosis you will be able to clearly understand this concept. After the completion of cell division, जब cell division complete हो जाती है तो क्या होता है, the chromatids, अब ये chromatids क्योंकि separate हो गए तो दोनों individual chromosome बन गए, ये दोबारा से decondense हो जाते हैं, मतलब इन्होंने जो अपना एक पर्टिकुलर डेंस स्ट्रक्चर बनाया हुआ था ये दे रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड दे बिकम थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स. दोबारा से क्रोमैटिन नेटवर्क बन जाता है. और अच्छा ये हो गया क्रोमोसोम्स की कहानी. अब आप अभी माइटोसिस, बस इसके बाद माइटोसिस है, उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, क्या क्रोमैटिड का क्या फंक्शन होता है, सेंट्रोमियर क्या करता है, ऑल दैट. नेक्स्ट इज व्हाट आर जीन्स. अब जीन्स क्या होती हैं? जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ क्रोमोसोम दैट एनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन्स विच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सम पर्टिकुलर फीचर ऑफ द बॉडी. यह तो इसकी हो गई ऑफिशियल डेफिनेशन, दैट दे आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ व्हाट आर जीन्स एक्चुअली? अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो जीन्स आर समथिंग, दे आर सम कोड्स विच कैरी अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. मतलब आपके ह्यूमन बींग्स हैं या प्लांट्स हैं या जो भी एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे फीचर्स हैं विच मेक अस यूनिक. तो हमारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर ऑल बिकॉज ऑफ जीन्स. ईच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक. जैसे कि आपका आई कलर है, स्किन कलर है, हेयर टेक्सचर है, हेयर कलर है, आपकी बॉडी में जो भी फीचर्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपके कौन सी चीज़ कैसी है, क्यों है, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ जीन्स. जीन्स में प्रोटीन्स की कोडिंग होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के वेरियस फीचर्स ऐसे अपीयर होते हैं जैसे वो हैं. द प्रेजेंट कंडीशन वो सिर्फ जीन्स की वजह से होते हैं. जीन्स सबके अलग होते हैं, उनकी सीक्वेंस अलग होती है प्रोटीन्स की, दैट इज वाई वी हैव डिफरेंट फीचर्स. सो दे आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी which are transferred from parents to offspring and are responsible for some specific characters of the offspring. तो हमें अपने जो कैरेक्टर्स हैं, जो जीन्स हैं, वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं. तो मदर और फादर दोनों के जीन्स हमारी बॉडी में आते हैं. दैट इज वाई वी हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच रिजेंबल आवर फादर एंड वी हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर सिमिलर टू आवर मदर. सो genes are the basic units of heredity that transfer our characteristics from one generation to another. And they how do they transfer these characters? With the help of certain proteins. They contain certain encoded proteins. Now there is a box given and DNA fingerprinting के बारे में इसमें थोड़ा सा दे रखा है. It is not in your syllabus, but you can just read it. And DNA fingerprinting का मतलब ये हो गया कि जो आपकी जो स्पेसिफिक जीन्स हैं, जो DNA की सीक्वेंस हैं, वो यूनिक होती हैं, वो किसी की भी सेम नहीं होती है. इसीलिए हम आपके DNA को स्टडी करके किसी को पहचाना जा सकता है कि ये किसका DNA है. ब्लड के थ्रू, सीमेन के थ्रू हम पता कर सकते हैं. अब प्रोग्रेस चेक देख लेते हैं आपका. यहाँ तक पढ़ने के बाद आपकी ये बुक में 6 फिलअप्स दे रखे हैं. लेट अस डू देम, है ना. आप ये कर लोगे तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया. तो क्रोमैटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ DNA एंड क्रोमैटिन फाइबर के हमने 2 कंपोनेंट पढ़े हैं. 40% DNA होता है और 60% क्या होते हैं? हिस्टोन्स. हिस्टोन्स मेकअप द रेस्ट 60% ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, जो कि प्रोटीन है. हिस्टोन्स आर प्रोटीन्स. सेकेंड वन इज
The two sister chromatids of a chromosome are attached to each other at, जो दो sister chromatids हैं वो आपस में किस चीज से अटैच होते हैं? सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या था, क्या नाम था उसका? सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं और जब माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन होती है, तो सेंट्रोमियर इट ब्रेक्स इनटू टू एंड द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. थर्ड इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय. यहाँ पे आपको बताना है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था, तो वो हो गए वॉटसन एंड क्रिक. वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला. The three components of a nucleotide are. अब न्यूक्लियोटाइड क्या है कि कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि यूनिट्स हैं जो कि डीएनए में होते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेपिटेटिव यूनिट्स हैं. तो न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट क्या थे, आप याद करो. पहला क्या था? फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप था पहला. दूसरा क्या था? एक पेंटोज शुगर थी, पेंटोज शुगर. एंड थर्ड वन वाज नाइट्रोजनस बेस, जो कि चार तरह के थे. क्या थे वो? एटीजीसी. एटीजीसी से आप ध्यान रखो, एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन. तो नाइट्रोजनस बेसिस थे. ठीक है. नेक्स्ट, डीएनए स्ट्रैंड वूंड अराउंड अ हिस्टोन ऑक्टेमर फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द. जो हिस्टोन ऑक्टेमर होता है, जो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के जो ग्रुप्स हैं, उनके चारों ओर जब डीएनए स्ट्रैंड वूंड होती है, लिपटती है, तो हम उसको, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. And these nucleosomes then condense and further they condense further and further and they form the chromosome. A specific sequence of nucleotides on a chromosome constitutes a. अब न्यूक्लियोटाइड्स की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होती है क्रोमोसोम में, जो कि एक पर्टिकुलर फीचर को या कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करती है, हम उसको क्या बोलते हैं? सो दैट इज अ जीन. What is gene? It is nothing but a specific sequence of nucleotides. So that is gene. So this finishes with this part, and then in the next part we are going to study mitosis. Mitosis पढ़ेंगे. Mitosis देखने में difficult लगता है, but it is not so. So we'll finish it in the next class. Okay.